Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rich Vlogs. I hope you guys are doing fine. So today I'm taking my Fortuner for a servicing and we are going to Toyota's Genuine Service Center. I'm sorry, Toyota Service Center. I'm not going to a local dealer for the servicing because servicing is somehow what I feel that Toyota is better at doing all these things, whether going to the local vendors. But you know, when it comes to a paint job or wheel balancing alignment, I prefer to the local vendors because they are inexpensive and fast. But when it comes to engine or something which is related to the electronics, I prefer the Toyota's service center only because you know they are well trained, they have good experience. Nice. Anna. So when it comes to servicing, I prefer to go over there only. So today what we are going to do, we are going for a service. My car has done 60,000 kilometers already, and I'm also going for some kind of polishing, like cutter polish भी कराना है गाड़ी का, क्योंकि है क्या बहुत ज़्यादा हेजी हो रही है गाड़ी. अगर इफ़ यू टच द कार ना तो यू फील कि बहुत ज़्यादा रफनेस आ रही है, थोड़ा सा लश्चर कम हो गया है पेंट का, द ग्लॉस है ना, तो वो सब थोड़ा सा रिवाइव कराते हैं. लेट्स टेक आवर car to brand new condition because 2.5 years approximately हो रहे हैं. So I think कि ये सारी चीज़ें कराते रहने चाहिए जिससे your car keeps looking new because everybody likes a new bride, right? So as I was saying, there is roughness on my car. Actually what happened, the front bumper got scratched, so I got it painted from a local vendor. Then I didn't go for cutter and polish. So उससे क्या हुआ, जो ओवर स्प्रे हुआ ना वो पेंट यहाँ पे है, तो आई कैन फील अ lots of roughness. तो इस roughness को रिमूव करने के लिए हमें कटर पॉलिश करना पड़ेगा, जो कि आज हम टोयोटा के जेन्युइन सर्विस सेंटर से करा लेंगे. बाहर भी हो सकता था लेकिन टाइम नहीं मिला तो हम गए नहीं. नाउ लेट्स गेट इनटू द कार एंड लेट मी शो यू द किलोमीटर्स. So kilometers, you can see it's 60,345 kilometers, 345 kilometers extra chala diya. And as usual, I love the interiors of my car. They are beautiful, absolutely beautiful. This works, this does not work, but it smells nice. So we have officially reached the Toyota service center and you can see the service center and the kilometer reading is 360. So it's approximately 15 kilometers from my house. So now we are going to enter the service station. As you can see, the lineup of Fortuners have begun. I don't think so our service ho payegi. The complete service station is full. Oh my god. Let's see what happens. So guys, this is day 2 and I'm back from Toyota Service Center. Here's the bill. So the service was done in a very long period, right? I went there at 10 and I came back at 6. So it was a long period and I was very tired. So मैंने सोचा हटाओ वीडियो क्या ही बनाते हैं. तो उसके बाद जो है आज सुबह मॉर्निंग में इट्स अ लवली वेदर. द वेदर इज़ वेरी नाइस. The weather is very nice. So let's start with discussing the servicing of Fortuner at 60,000 kilometers. That 60,000 kilometers, it was kind of a major service, but there was nothing major in it because we got the engine oil replaced, the oil filter replaced, the diesel filter replaced, and the air filter replaced, and the AC cable filter replaced. But as I know, Fortuner comes expensive on the labor part side, but ठीक है, it's a Fortuner. So let me see the tax invoice है. ये उल्टे पेपर स्टेपल करते हैं, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ, पागल है. So 60,000 किलोमीटर वाली सर्विस का जो लेबर चार्ज था that was 3,200 rupees excluding GST. GST के बाद it was 3,776. और उसके बाद मैंने कराया था एक्सटीरियर ब्यूटिफिकेशन, जो रफनेस आ रही थी, लश्चर का लॉस हो गया था. सो दैट वाज लाइक फॉर 3,157 इंक्लूसिव ऑफ GST. तो क्लोज टू 6,000 समथिंग जो है इसका लेबर चार्जेस ही हो गए थे. एंड कमिंग टू आफ्टर दैट कमिंग टू द पार्ट्स विच वी हैव यूज्ड, तो इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा यूज़ करी. एक विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड और दूसरा डीजल इंजेक्टर क्लीनर. डीजल इंजेक्टर क्लीनर कुछ नहीं है, दैट देयर इज़ जस्ट अ लिक्विड, वो जो है डंप कर देते हैं डीजल पेट्रोल टैंक में, उसके साथ मिक्स हो जाता है. फिर वो कॉमन रेल इंजेक्टर सब अपने आप ऑटोमेटिकली एक फुल कैपेसिटी में क्लीन कर देता है. फुल कैपेसिटी मीन्स फुल कैपेसिटी ऑफ द डीजल टैंक. जब वो पूरा बर्न हो जाएगा तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा. आई डोंट नो हाउ मच दिस वर्क्स, बट ऐसे ही मुझे उसने कुछ बताया.
बट इंजेक्टर का मामला था तो आई सेड ओके। हाँ, ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर द इंजन फ्लश। तो इंजन फ्लश मैं अपनी गाड़ियों का कभी नहीं कराता हूँ, बिकॉज होता क्या है, क्योंकि दीज इंजन्स आर वेरी प्रिसाइज एंड वेरी हाई परफॉर्मेंस इंजन्स, तो इसमें कभी कभार जो है ना कुछ जो रेजिड्यू है वो कलेक्ट हो जाता है इंजन में और कुछ जगह फिक्स हो जाता है। फ्लश क्या करता है, उनको क्लीन कर देता है। तो उनकी क्लीनिंग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि इन इंजन्स में लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो दैट्स वाई आई नेवर यूज फ्लश। फ्लश भी वो 1,500-2 हज़ार रुपये का था उनका, तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जो इन्होंने पहले मुझे बना के दिया ना बिल, तो दैट वाज लाइक फॉर 25,000 रुपीज़। आई वाज लाइक क्या क्या कर रहे हो भाई, एसी क्लीन कर रहे हैं, इवापोरेटर कॉइल क्लीन कर रहे हैं, एसी अच्छा काम कर रहा है, इंटीरियर में किसी तरीके की स्मेल नहीं आ रही है, तो वाई शुड आई गेट ऑल दिस क्लीन। तो 4-5 हज़ार रुपये का कुछ लफड़ा था, तो मैंने कहा भाई वो तो नहीं चाहिए मुझे, ना ही मुझे ये फ्लश चाहिए था। मेरे को चाहिए था इंजन ऑयल, ऑयल पम्प फिल्टर, एंड देन मुझे चाहिए था एयर एसी फिल्टर, फिर एयर फिल्टर। तो वो सारी चीज़ें ही मैंने चेंज कराई हैं। तो उसके बाद आते हैं जो हमारी गाड़ी में वो पड़ा इंजन ऑयल, दैट वाज फॉर 4,557 रुपीज़, है ना। एंड उसके बाद जो एयर फिल्टर था 1,900 का, एसी फिल्टर जो अंदर रहता है केबिन फिल्टर 2,002 रुपीज़ का, गैसकेट है 61 की, आई डोंट नो कितनी गैसकेट लगाई है लोग, है ना। उसके बाद ऑयल फिल्टर 475। हाँ, इन लोगों ने एक गलती करी पता है, इन्होंने मुझे बताया कि ब्रेक ब्लीड करेंगे। अच्छा, चांस की बात है कि मैं सर्विस स्टेशन में अंदर पहुंच गया और मैंने उससे पूछ लिया मैकेनिक से कि ब्रेक ब्लीडिंग आपने करी है या नहीं करी है। तो उसने कहा सर इसने मेंशन नहीं किया है, ब्रेक ब्लीडिंग मैंने नहीं करी है। तो मैंने कहा इज इट रिक्वायर्ड एट दिस सर्विस। उसने कहा सर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 80,000 पे आना, जब डिफरेंशियल ऑयल वगैरह चेंज होगा तो उसके साथ ब्रेक ब्लीड भी कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब बिल बना तो उसमें ब्रेक ब्लीड लिखा हुआ था। ब्रेक ब्लीड का मतलब होता है ये नया जो है ब्रेक ऑयल डालते हैं, वो ब्रेक ऑयल फ्लश आउट करते हैं इन लोग। जब वो फ्लश आउट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो नया नया डालते रहते हैं, तो वो पूरा मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है ब्रेक फ्लूइड जो भी होता है। तो वो इन्होंने किया नहीं था। फिर मैंने क्या किया ना, वो जो उसने बिल बनाया था उसके साथ में वर्क ऑर्डर भी रहता है, वर्क ऑर्डर एंड वर्क डन। तो वर्क डन मैंने चेक किया तो देखा उसमें ब्रेक ब्लीड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसने बिल में चढ़ा रखा था। तो व्हेन यू आर एट अ सर्विस सेंटर ना, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, अदरवाइज दे विल चार्ज यू लॉट ऑफ मनी। नो नो नो, चलो भागो। he is lurking on the वो क्या कहते हैं ट्राईपॉड, he wants to piss on the tripod। तो you have to be very alert, क्योंकि वो तुम्हें कहीं भी ठग लेंगे भाई। तो अच्छा, कमिंग टू द फॉर्च्यूनर, हाँ ये सारी चीज़ें अगर इनको आप जोड़ेंगे तो प्रिसाइजली 17,596 का बिल मेरा बना। तो व्हेन कमिंग टू द फॉर्च्यूनर, इट इज़ 60,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, राइट, यू गाइज नो, मैंने आपको मीटर दिखाया ही था। एंड ये फॉर्च्यूनर जो है ना टोयोटा, ये इफ़ यू गो एक्सपेंसिव, तो ये एक्सपेंसिव कार्स की मारुति है, बिकॉज 50 लाख रुपए की गाड़ी है। 50 लाख की यू बाई एन आउडी, उसकी सर्विस आएगी 1 लाख रुपीज़। आई हैव फ्रेंड्स जिन्हें मुझे पता है कि उनकी इतनी सर्विस आती है, इफ़ दे गो टू द ऑथराइज सर्विस सेंटर एज आई डिड। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर तो जाना ही पड़ता है, बट अब इस गाड़ी की अगर 17,500 रुपये सर्विसिंग आ रही है। हाँ, वन मोर थिंग, व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट, ये मैंने बाहर से ही करा लिया था, उसका वीडियो पहले पड़ा हुआ है, तो वो मेरा 500-700 में हो गया। और व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जो टोयोटा में है वो 3,500 रुपये का था क्यूमुलेटिवली। 1,500-1,500 का आई गेस अलाइनमेंट था और उसके बाद व्हील बैलेंसिंग थी। तो आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, मेरी गाड़ी ऑलरेडी फाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ थी, एक छोटा सा इशू है कि स्टेयरिंग व्हील में हल्का वाइब्रेशन है। वो लोग चाहते थे कि मैं अपना डिस्क रोटेशन करा लूँ। मतलब डिस्क रोटेशन में होता है ब्रेक पैड जो ब्रेक डिस्क जो होती है, उसमें कहीं कहीं ब्रेक पैड जब हाई स्पीड में ब्रेक लगते हैं तो कहीं कहीं ज़्यादा माल जो है ख़त्म हो जाता है। तो उनका कहना था कि इसको रोटेट करा लो। तो वो क्या करते हैं, डिस्क ऐसे ऐसे घूमती है और एक वो लगाते हैं लेथ टाइप का, लेथ मशीन टाइप का लगाते हैं, उससे पूरा उसे फ्लैट कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बहुत रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 120 के पहले तो वो नहीं कर रही है, जनरली 120 ही चलते हैं हम लोग। तो नहीं ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि अब मैं डिस्क में लगाता तो 1 mm तक का डिस्क कट जाता। तो डिस्क कटने का मतलब ये है कि लॉन्ग हॉल में नुकसान है हमारा, कि डिस्क जल्दी ख़त्म होकर पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा, एंड डिस्क कम्स एक्सपेंसिव। तो इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा मतलब आई यूज़ माई ओन इंटेलेक्ट कि हाँ क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो वो चीज़ देखा मैंने, मुझे नहीं कराने का मन था, तो वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये का था। एंड इट्स द कार इज़ वर्किंग फाइन, तो वाई शुड आई गेट इट डन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो ये मेन प्रॉब्लम था कि हाँ पेंट थोड़ा सा डल हो रहा था, थोड़े स्क्रैचेस नज़र आ रहे थे। दे हैवंट डन अ गुड जॉब, लेट मी टेल यू, बट दे हैव डन एन ओके जॉब। अब एक दिन में कितना ही करा सकते हैं, अगर डिटेलिंग वालों के पास लेके जाएं तो दे वांट लाइक 2 days और 3 days।
इतना टाइम ही नहीं होता है, गाड़ी हमें कहीं ना कहीं ले जानी होती है। तो खैर दिस वॉज द सर्विसिंग व्लॉग। एक दो क्लिप्स होंगी सर्विस की तो वो मैं डाल दूंगा इसमें। बट लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ टोयोटा, रिमेंबर वन थिंग, यू आर गोइंग फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड lesser servicing cost, lesser running cost. That's what I believe, because this is a 3-liter engine, right? 2.8 liter. So with this, and we are getting a service of 17,500 rupees on 60,000 kilometers. तो आई एम हैप्पी विद इट। अगर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट भी डाल लेते हैं, तो ये हो गया 8,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़। और उसमें भी 18,000 में 3,500 तो ब्यूटिफिकेशन के हैं, दैट मीन्स कटर पॉलिश के हैं। तो उसको अगर हटा दिया जाए तो हम क्लोज टू 14,000 आ जाते हैं, है ना? तो दैट इज़ ओके। आई थिंक 14,000 फॉर अ कार लाइक Fortuner is actually nice. So I think you must have liked this vlog, and this vlog would have been informative. If you want to see the bill personally, so I can also post pictures on Instagram. The Instagram channel is Rich Vlogs, so you can follow it anytime if you want to. Okay, thank you so much for watching.